सबसे पहला चीज now let me tell you that in today's class we are going to begin special integrals, and special integral is very important topic. Okay, special integral is a very important topic. हो सकता है कि आज जो मैं जो दो टाइप कराने वाला हूँ, the two types which we are going to complete in today's class, डायरेक्टली वहां से सम आ जाए 3 या 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का. तो एक बार ध्यान से सबके नोट करना. सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखो, some special integrals. And write down some and the formula. Sir, is that plus minus C? No, sorry, it's not plus minus. Please manager, because writing in this tab is very horrible. My writing, okay. Please manage everyone. So you have copied down these formulas. Hurry up. So everyone note down. So these are the three formulas. Initially, there are few more formulas, but these are the initial few formulas जो मैंने दिए हैं, and we are going to use these formulas. Now let us start with few basic concepts जो कि यहाँ पे जरूरत है इस particular topic को start करने के लिए. ठीक है? Now सबसे पहला concept. What are the concepts required? Let's start from the beginning. Okay? सबसे पहला चीज, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, suppose if I ask you what is added to 5, what is added to 5 so that the result is 7/5. क्या पूछा मैंने कि 5 में क्या ऐड करने से रिजल्ट 7/5 आएगा. If you recall that day when you had started problem sums in mathematics, it was So minus 18/5. Okay, it was, I think most probably it was class 4 or 5. So these were the very simple kind of questions you started with. कि what is the number which when added to 5 so that the result is 7/5. तो तुम लोगों ने वो नंबर को क्या किया था, x ले लिया था. Let that number be x so that when it is added with 5 the result is 7/5. If I solve for x, we'll get the value of that number which when added the result is how much, 7/5. So we are finding that what is the answer, what is that number which is added to 5 so that the It should result be is 7 minus 25/5. I'm sorry. So what we are finding कि अगर मैं यहाँ पे लाइक इसमें अगर मैं ऐड करूं -18, इसमें -18/5 ऐड करूं इस नंबर में, so what we are getting, if I add to this number 5 में अगर मैं -18/5 ऐड करूं, so just देखना एक बार, 7/5. if I add -18/5 to this number, we are clearly getting 7/5. अगर मैं मान लो ये पूछूं कि what is added to 5 so that the result is half, what is added to 5 so that the result is half, let that number be x. So if we solve for x, we'll get that number which when added with 5, we are finding that the result is how much, half. So what is that number which when added to 5 the result is equals to half, it is -9/2. Now suppose इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा गया होगा उस एकदम बेसिक लेवल के मतलब जब 4 या 5 में इस तरह का प्रॉब्लम समझ आया था, तो what is multiplied to 3, I repeat, what is multiplied to 3 so that the result is 7/5. Suppose इस तरह का क्वेश्चन है, what is multiplied to 3 so that the result is 7/5. So you don't know what is the number to be multiplied,
So let that number be x. If you consider that number to be x, you'll get x equals to how much? 7 by 15. मतलब अगर हम 3 में 7 by 15 मल्टीप्लाई कर दें तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 7 by 5 आ जाएगा. now ये लेवल का बेसिक कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके आज कुछ सम्स करने वाले हैं. नाउ तीसरा चीज मैं एक बार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक बार क्लास 10 का मैं एक बार रिकॉल कर दूं. व्हाट इज दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? एवरीवन नोट डाउन. You all know that x square plus 2xy plus y square is equal to x plus y का whole square. All right. X square plus 2xy plus y square is x plus y का whole square. And x square minus 2xy plus y square is x minus y का whole square. All right. ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर याद होगा क्लास 10 में कि मैं सीबीएसई स्टूडेंट बेसिकली ने ये फॉर्मूला को यूज करके कुछ तो आई मीन एक्सप्रेशंस को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में यूज किया था. नाउ लेट्स सी एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल्स. लेट्स सी. सपोज मान लो यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वी हैव गॉट 3x प्लस लेट्स से 5, और मुझे मान लो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसमें अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई दिस टू फॉर्मूलाज to make a particular expression of perfect square. देखो कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे, इस पे कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे. ध्यान देना. सबसे पहला पॉइंट, इस पे अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों फॉर्मूला में x स्क्वायर है, यहाँ भी मुझे x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है. अब देखो सेकेंड टर्म में अगर ये x स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान देना. अगर मान लो सेकेंड टर्म के आगे का साइन अगर पॉजिटिव है, देखो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला के आगे का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला. अगर एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाला टर्म है उसके आगे का साइन नेगेटिव है, उसका कोएफिशिएंट का नेगेटिव अगर है, इसका मतलब मुझे सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है. एज इट इज प्लस मींस आई नीड टू अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला. नाउ चेक हियर एवरीवन. वी हैव एक्स स्क्वायर, फाइन. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फैक्टराइज दिस 3x. हम लोग को 3x को फैक्टराइज करके इसको 2 into x into y के फॉर्म में इसको फैक्टराइज करना है. We have to factorize 3x and we have to write it in the form 2 into x into y. Now the question is what is y? I repeat, what is y? So that 2 into x into y results 3x. मतलब हम लोग को 3x को फैक्टराइज करके तीन चीज के प्रोडक्ट में, एक मिनट, हम लोग को 3x को फैक्टराइज करके तीन चीज के प्रोडक्ट में लाना है. I repeat once again, हम लोग को 3x को फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज मतलब समझते हो ना, बहुत सारी चीजों का प्रोडक्ट को फैक्टराइजेशन बोलते हैं. तो अगर मान लो मुझे 3x को फैक्टराइज करके 2 into x into y के फॉर्म में लाना है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज y? सो सपोज यू वांट टू आइडेंटिफाई, if you want to identify what is y, there is again method. हम लोग यहाँ पे एक मेथड यूज कर सकते हैं. y क्या होगा? 3x by 2x, x gets cancelled and the result is 3 by 2. मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 into x into y, where what is the value of y we have calculated, it is 3 by 2. तो अगर मैं मान लो इस पर्टिकुलर टर्म को, मिडिल टर्म को, अगर मैं 2 into x into y के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 ये रहा, x ये रहा, y क्या है? 3 by 2 है. समझ में सबको को? इज दिस क्लियर? मतलब देखो मैंने कैसे 3x को 2 into x into y के फॉर्म में मैंने इसको फैक्टराइज किया. कैसे इसको फैक्टराइज किया, इसका तरीका देखो ध्यान से. अब देखो मैं क्या करूंगा, 3x की जगह पे 2 into x into 3 by 2 में लिख दूंगा यहाँ पे. ऑलराइट एवरीवन. अब मुझे ये बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए, है यहाँ पे 2 into x into y भी होना चाहिए, वो भी है, बट यहाँ पे प्लस y स्क्वायर नहीं है. अब बताओ मुझे यहाँ पे प्लस y स्क्वायर लाने के लिए मुझे किस चीज का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? 3 by 2 का होल स्क्वायर. एब्सोल्युटली करेक्ट. वी हैव टू ऐड एंड सबट्रैक्ट 3 by 2 का होल स्क्वायर. आई रिपीट वंस अगेन, मुझे इसको क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मतलब ये देखो y यहाँ पे 3 by 2 है, तो मुझे 3 by 2 का स्क्वायर को एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार 3 by 2 का स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट हैव द राइट टू चेंज द एक्सप्रेशन. आई रिपीट वंस अगेन, I don't have the right to change the expression, but I can write equivalent so that we approach towards the solution. Are you getting my point? We can write equivalent expression such that we can approach towards the solution. जो हमारा solution है उस तक हम पहुंच पाए. अब यहाँ पे ऑलरेडी +5 है, ऑलरेडी +5 है. अब देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक का एक्सप्रेशन को ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक का एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो एक बार, क्या मैं इसको लिख सकते हैं x plus 3 by 2 का होल स्क्वायर, 3 by 2 whole. yes, a square plus, just note down, x square plus 2xy, I repeat,
x square plus 2xy plus y square is x plus y का होल स्क्वायर. आर यू गेटिंग? अब यहाँ पे बचा क्या? -9/4 + 5. ठीक है, अब -9/4 + 5 का को सॉल्व करके क्या मिलेगा? लेट्स सी. इट्स 11/4. -9 plus 20/4. That is how much? It is not minus but 11/4. All right, it is how much? Plus 11/4. All right, so this is the way how we can express a particular expression in perfect square form. Let me give you one more example. Okay, let me show you one more example so that it is more clear to you. Okay, because if these things are clear, there is nothing left in this particular chapter. अगर ये सारा चीज क्लियर है ना, मतलब इस चैप्टर में और कुछ बचेगा ही नहीं. मैं बता रहा हूं तुम लोगों को. ध्यान देना. दूसरा एग्जांपल, सपोज मान लो यहाँ पे 2x² है. ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे लेट्स से -5x है, और मान लो यहाँ पे +3 है. ठीक है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है ना, तो ध्यान देना एक बार. सबसे पहला चीज, अगर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट मुझे यहाँ बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए. दिख रहा है तुमको यहाँ पे? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन बोथ फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2? यस, 1. तो सबसे पहला काम है मुझे यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है. तो 1 बनाने के लिए x² के आगे जो भी चीज तुमको दिख रहा है ना प्रोडक्ट फॉर्म में, उस चीज को कॉमन ले लो. ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा होगा कि कॉमन लेने का मतलब तो ये हम लोगों ने ऐसे सीखा था ना कि 2x + 6y है, तो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं. अब यहाँ पे जबरदस्ती वाला कॉमन हो गया ना. यहाँ तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? जबरदस्ती वाला कॉमन क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ तो 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 और यहाँ पे तो 2 तो कॉमन नहीं है. अब इस तरह के जबरदस्ती वाले सम में जहाँ पे कॉमन लेना जबरदस्ती पड़ता है, उसमें हम क्या करेंगे? ध्यान देना. जैसे मान लो सपोज यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁵ है. अगर मुझे कोई बोले कि यहाँ से x⁻10 कॉमन ले लो, सो डोंट गेट सरप्राइज. क्लियर है नॉट? ऐसा हो सकता है, कोई भी बोल सकता है जबरदस्ती कॉमन लेने के लिए. इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हर एक टर्म को हम उस चीज से डिवाइड कर दे जो हम कॉमन लेना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. सपोज अगर मान लो यहाँ पे a - b और मुझे कोई बोले कि जबरदस्ती की a भी लेट्स से a भी कॉमन ले लो. कोई मुझसे पूछे कि a भी कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉमन लेके दिखा देते हैं. a को ab से डिवाइड कर दो, b को भी ab से डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? ये ab/ab इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/b - 1/a हो गया. अब तुम देखो, तुमको अगर पूरा श्योर होना है कि तुमने जो किया है वो राइट या रॉन्ग है, तो इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके देख लो. तो ab इंटू 1/b क्या हो जाएगा? a. एंड ab इंटू 1/a क्या हो जाएगा? ab इंटू 1/a विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम b. Just a minute, everyone. So we were here that कॉमन कैसे लेके और मतलब किस तरह से कॉमन लिया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह का कुछ चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ. तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताओ तो. So -5/2x क्लियर एवरीवन? -5/2 plus 3/2. एंड यहाँ पे 3/2 आ जाएगा. तुमको अगर श्योर होना है तो तुम 2 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके देखो, अगर ये आ जाता है मतलब एकदम करेक्ट है. हो गया. अब देखो नेक्स्ट है कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट क्या है. चलो यहाँ पे x² तो आ गया. अब बताओ मुझे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 लगाना चाहिए या फॉर्मूला नंबर 2? टेल मी. Sir, 2. बिकॉज x² के बाद करेक्ट, बिकॉज x² के बाद वाला जो टर्म है उसके x के आगे का साइन क्या है? नेगेटिव है. ये रहा देखो नेगेटिव. अब मुझे करना क्या है? इस टर्म को मतलब 5/2x को, लिसन हियर, 5/2x को मुझे फैक्टराइज करना है 2 × x × y के फॉर्म में. किस फॉर्म में? 2 × x × y के फॉर्म में. मतलब मुझे इसको 2 लिखना है, इंटू x लिखना है, इंटू y. अब क्वेश्चन ये कि ये y होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं. 5/4. y क्या होगा? तो 5/2x इंटू 1/2x. सॉल्व करके क्या आ गया? 5/4 आया कि नहीं? तो एकदम इजी मेथड है ये, तुमको इसमें एकदम दिमाग नहीं लगाना. किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बताना एक बार. 2 × x × 5/4 कितना आ रहा है? 5/2x आ रहा है ना. नेक्स्ट. Yes, sir. इसके बाद मैंने यहाँ पे इस 5/2x को 2 × x × y के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया. ये तरीका भी मैंने बता दिया कैसे इसको फैक्टराइज करना है 2 × x × y के फॉर्म में. y निकालने का तरीका ये. अब देखो नेक्स्ट,
यहाँ पे अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इसमें क्या ऐड करना है, ऐड Sir, करना है add and y, subtract 5/4 का whole square. यस y का स्क्वायर ऐड करना है, मतलब 5/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। ऐड किया 5/4 का होल स्क्वायर मतलब 25/16 और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया एंड वी हैव ऑलरेडी 3/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, x माइनस x square minus 5/4 नॉट का x स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज हाउ मच, व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, दैट इज x माइनस X y minus का y होल whole स्क्वायर, square. यू मस्ट से x माइनस y, y इज 5/4 का होल स्क्वायर। अब बचा यहाँ पे माइनस 25/16, माइनस 25/16 प्लस 3/2, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, माइनस So minus 25 प्लस 1/16. 24/16, that is minus 1/16. So I think everyone, have you understood, I mean have you followed like कि कैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना अगर हो तो कैसे किया जाता है, ठीक है, इतना तक ही मैं रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सभी को ये दोनों एग्जांपल्स को कॉपी कर लेने को, प्लीज डू फास्ट and if you have any doubt please ask, everyone note down. So let me first start with the very simple questions where we'll be understanding how to apply the formula. पहले हम ये सिखाएंगे कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। So let me start with a very simple question. Let's say we have 1 by 4 minus x square. एकदम देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, 1 by 4 minus x square, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। क्या मैं इसमें 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ Yes. और यहाँ पे 1 by a square minus x square का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। Now what is the formula of 1 by integration of 1 by a square minus x square? Please check your copy, the formula copy, and tell me what is the I mean result. So 1/2a log a minus b at minus b by at plus a. So it is 1 by twice a log of a plus x by a minus x. a plus x by a minus x. All right. Now let me just take the second example. Suppose we have, let's say 1 by 3x minus 1 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 9, ये वाला हमको ध्यान देना, ये क्या है 3x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 है। अब एक बात बताओ, क्या मैं 3x minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 को, क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक बार बताओ। Yes, sir. yes ठीक है। sir अब मुझे ये बताओ, अब जस्ट एक बार देखो, रिलैक्स होकर सब कोई बोलो, टेल मी इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, 1 2 3 कौन सा बताओ, इसमें कौन सा Second. फॉर्मूला, So first one. मतलब क्या मैं 1 Sir, बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मैं फॉर्मूला यहाँ लगा सकता हूँ, बताओ तो। Yes, sir. हाँ बट यहाँ लगा तो देते हैं। बट एक बात बताओ, यहाँ पे तुम लोग कैसे बोल दिए मुझे समझ में नहीं है। आई मीन यू बी आई मीन कॉन्फिडेंट व्हाट यू वांट टू से। एक बात बताओ, यहाँ x के जगह पे तो 3x minus 1 है, कैसे हम इसको, So substitution Sir, can be substitute done because करके- the derivative is constant. yes see because you know that इंटीग्रेशन में जिस पार्ट को हम x अज्यूम कर रहे हैं, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर वो एक्सप्रेशन लीनियर है मतलब उसमें हम अज्यूम करके उसमें हम चेन रूल, मतलब जो मैंने बताया था चेन रूल वाला कंसेप्ट, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। याद है तुम लोगों कि अगर yes इंटीग्रेशन में जिस पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है मतलब उसमें हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बताओ तो, अगर मान लो मैं इस पूरे चीज को x माने मान लिया, जिसको मैंने येलो कलर से मैंने सर्कल किया है, इस पूरा चीज को अगर मैंने x मान लिया सपोज, so what is the formula 1 by x square minus a square? Let's apply the formula first. So if we apply the formula 1 by x square minus a square, it is 1 by twice a into log of x minus a divided by x plus a. All right, समझ में आया तो बात, x minus a by x plus a. All right, but what next? Something is left, and what is that? हम लोगों So ने 1 by जिस 3. into 1 by हाँ, 3 1 हम by लोगों ने 3 जिस पार्ट को अज्यूम किया ना, उसका x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, हाँ 1 by उसका 3 x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना मत भूलना, याद है ना ये चीज। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 by 18। और अगर मुझे स्टार्टिंग में बहुत तो बोल रहा था सब्स्टिट्यूट करने को, बट एक बात बताओ, ये सारा चीज हम लोग को इतना एडवांस लेवल में सब कुछ पता है, तो ये सब पे हम स्टेप्स बचाएं तो ज्यादा बेटर है ना।
ये सब सम्स में अगर हम स्टेप्स बताएं तो बचाएं तो ज्यादा बेटर है। क्यों, हम Yes, लोग को सब कुछ पता ही है, तो क्यों सब्स्टिट्यूट करके अपना टाइम हम वेस्ट करेंगे? इट्स बेटर, वी नो व्हाट इज चेन रूल, वी नो एवरीथिंग, सो इट्स बेटर वी डायरेक्टली आई मीन सॉल्व दिस सम। ऑलराइट एवरीवन, आई एम कमिंग, जस्ट अ मिनट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। जस्ट Yes, एक sir. बार मैं एक बार के लिए मैं एक सम में लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्या मैं यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस 4 है। अब एक चीज मैं सिर्फ तुम लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या इस समय में इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख के और 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख के, क्या मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? बताओ तो मुझे No, ये सब sir. फॉर्मूला Derivative will be हाँ 2x. कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। No, sir. Derivative is not constant. पीयूष, यहाँ पे हम जिस पार्ट को ये- x अज्यूम कर रहे हैं वो तुमको लीनियर दिख रहा है? लीनियर है ये? नहीं वो ऑटोमेटिक स्क्वायर नहीं है सही। लीनियर नहीं है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी है बात कि जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। तो बताओ हाँ तो हाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखा 2x, समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमको पता है बहुत लोग एक्साइटमेंट में पता है ये भूल जाएगा और डायरेक्ट क्या करेगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देगा 1/x² प्लस a स्क्वायर का। प्लीज मेक श्योर ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे, पहले अभी मैंने ये बता दिया कि इसमें नहीं अप्लाई करना। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ number 4, okay, now let me see who can, I mean, explain me like what is to be done। देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन लिखने से पहले। देखो जो मैं अभी सम करा रहा हूँ, जो लॉजिक कंसेप्ट अभी नया मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग पहले का कंसेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। तो बहुत लोग क्या होता है कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ही पर ध्यान देता है और पहले का पूरा दिमाग में ब्लैंक कर देता है। ऐसा मत करना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, नाउ टेल मी एवरीवन व्हाट टू डू इन दिस सम। यू जस्ट डोंट, अभी ये सोचो पहले क्या करना चाहिए, बताओ। So long division. No, how long division? Long division in polynomial we do, right? No, sir. Power x. So e to the power of x is equals to t. Very good, absolutely correct, बहुत बढ़िया। कौन है? Pratim. Very good. So we find that अगर हम e to the power x को t ले लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में e to the power 2x है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e to the power x का होल स्क्वायर? क्या मैं इसको e to the power x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि पावर पर मल्टीप्लाई होता है। अब मैं यहाँ पे e to the power x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा t से, क्योंकि देखो क्यों मैं इसको सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज इसका डेरिवेटिव से ये चीज रिप्लेस हो जाएगा ये। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e to the power x equals to dt by dx. So we find that e to the power x dx is equal to dt. तुम ऐसे भी लिख सकते हो और याद होगा मैंने पहले बताया dx equals to 1/e to the power x dt भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। So I will become e to the power x dx will be replaced with dt, 3 ऑलरेडी है वहां पे, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। इसके बाद 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख देंगे and then we will apply the formula 1/t square minus 9 का 9 में t square minus 3 square लिख के, और इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/x square minus a square का फॉर्मूला। What is the formula? It is 1/2 a into Into log of x minus a by log of. okay, और उसके बाद जहां पे t है 3 कैंसिल हो गया, जहां पे t है वहां पे हम e to the power x सब्स्टिट्यूट कर दें। समझ में आया तो सबको एक बताओ एक बार, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस एंड मैं इसके जस्ट नीचे एक सम मतलब लिख रहा हूं, अभी देखो बताएगा तो कोई भी, यू जस्ट टेल मी आफ्टर कॉपिंग। सब कोई कॉपी कर लेगा, उसके बाद बताएगा इसमें लॉजिक क्या लगा। So that is sine. यस, Sin 5 x. sin x, 5 sin x by 3 sin square x plus 4, this is the question। okay, don't answer right now, please copy number 4 and then let everyone think first। कोई भी बीच में अभी नहीं बोलना प्लीज, क्योंकि सबका दिमाग जो है ना वो मतलब चलाना पड़ेगा सबको। चलो ट्राई करो तो इसको कॉपी करके। So in question number 5,
Okay, sorry, just a minute, everyone. So the question is 5 sin x by 3 sin square x plus 4. 5 sin x by 3 sin square x plus 4. Okay, now I'm just giving you the option to, yes, tell me. Now tell me. Sir, Sir, in ये place वाला of term sin को square break x, करेंगे we'll क्या? write 1 minus cos square x, and then cos x we'll take as t. See, okay, so it is, I mean, correct. Like you have in the numerator 5 sin x. So what we can do here, first of all, we Yep. can write sin square x as, first of all, we can write sin square x as 1 minus cos square x. Okay, we can write 1 minus cos square x. उसके बाद let's simplify, I mean, simplify the denominator part. तो अगर हम डिनोमिनेटर पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 7 माइनस 3 cos square x. ऑलराइट, अब देखो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि cos square x का मतलब क्या होता है, cos x का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, cos x को t से सब्स्टिट्यूट करना है. ऑलराइट, तो फिर ये हो जाएगा minus sin x equals to dt by dx. Therefore sin x into dx equals to minus dt. So I will become, अब देखो sin x dx के जगह पे, sin x dx के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस dt. तो माइनस बाहर रख देता हूं मैं, चलो पूरा माइनस 5 ही बाहर रख देता हूं मैं, ये रहा 5 भी है. उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 7 minus 3t square. All right, now you will tell me what next. Sir, we'll What write it as root 7 whole square minus root 3t whole square. ओके, करेक्ट. मतलब हमारे पास दो वेज है इसको करने का, सॉल्व करने का. एक चीज हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 7 को रूट 7 का होल स्क्वायर, 3t स्क्वायर को रूट 3t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज व्हाट इज रूट 3t का होल स्क्वायर, रूट 3t का होल स्क्वायर इज 3t स्क्वायर 3t एंड square. रूट 7 का होल स्क्वायर इज 7. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, विच इज 1 बाई ट्वाइस ए log of a plus x by a minus x. ओके, प्लस सी. हो गया ना, सही है ना, ये कुछ गलती नहीं है, Yes, sir. कुछ गलती नहीं है. So 1 by root 3. 1 by root 3 मल्टीप्लाई 1 होगा, by root 3 मत डिवाइड मल्टीप्लाई होगा. होगा. आई मीन 1 by root 3 मल्टीप्लाई मतलब रूट 3 डिवाइड. मैं क्यों बताओ तो, क्योंकि यहाँ पे t के जगह पे, मतलब अगर हम देखें तो ये है, दिस इज इन द फॉर्म, आई मीन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इज a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. बट व्हाट इज हियर एट द प्लेस ऑफ t, t के जगह पे क्या है, रूट 3t है ना, मतलब ये लीनियर है. तो हमको क्या करना है, t का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है. तो ये मत भूलना, ये वाला पार्ट, ठीक है. और फाइनली जहां पे t दिख रहा है, रूट 7 इंटू रूट 3 इज रूट 21. और जहां पे t दिख रहा है वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, t की जगह पे cos x. ओके, t की जगह पे हम लोग cos x रिप्लेस कर देंगे. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बाद देखना एक बार, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाले लाइन के बाद, इस लाइन के बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. टी स्क्वायर के आगे जो 3 है ना, ये कॉमन ले लेते हैं. तो बताओ, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ 7 में क्या आएगा, 7 ये वाला टर्म में क्या बचेगा, 7/3. ऑलराइट, इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. अब 7/3 को हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 7/3 का होल स्क्वायर. और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम ये वाले, ठीक है. 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम ही चीज आएगा, कोई डिफरेंस नहीं. समझ में आया? तो हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं. तो फटाफट इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले टाइप 1. नाउ विल स्टार्ट टाइप 1. अब एकदम टाइम नहीं लगेगा, बस खत्म हो जाएगा 2-3 सम करके पूरा. Now let's start type 1, okay? Everyone note down. Type 1. Now what is type 1? Listen here. Type 1 is constant in the numerator divided by quadratic expression in the denominator.
Okay, type 1 is constant in the numerator and quadratic expression in the denominator. Now let's take the first example. Let's say we have 1 divided by 3 minus 5x minus 2x square. ठीक है, ये सम एक बार देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. तो व्हाट आर द स्टेप्स? लिसन हियर. सबसे पहला स्टेप ध्यान देना एक बार. सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लोग इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे. एक्सप्रेस डिनोमिनेटर in the form ax square plus bx plus c. तो पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप है कि हम डिनोमिनेटर को ax square plus bx plus c के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे. तो मैं अगर डिनोमिनेटर को ax square plus bx के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? पहले आ जाएगा -2x स्क्वायर, फिर आ जाएगा -5x, फिर आ जाएगा +3. ओके, नेक्स्ट step 2. Now what is step number 2? Step number 2 is taking the coefficient of x square common to make it 1. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो x square का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेके, अगर वो 1 नहीं है तो उसमें कॉमन लेके उसको 1 बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है. तो अगर मान लो मैं इसको अगर फॉलो करूं, ये वाला स्टेप को फॉलो करूं, तो यहाँ पे मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन लेना चाहिए. तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -2. So let's take -2 common, as we are taking -2 common in the denominator, so it will come 1 by -2 outside the integrand. So यहाँ पे तो x स्क्वायर बच जाएगा. बट एक बात बताओ तो, यहाँ पे सेकंड, सॉरी आई जस्ट मिस्ड हियर x. ओके, एवरीवन नोट डाउन. मैं यहाँ पे x मिस कर दिया था. ठीक है, देखना ही -5x + 3. नाउ टेल मी एवरीवन, अगर मैं मान लो -2 कॉमन ले लिया यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, ये रहा देखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बताओ तो? +5/2x. बिकॉज अगर मैं -5x को -2 से डिवाइड करूं तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5/2x. अब देखो लास्ट वाला टर्म +3 है. +3 को अगर हम -2 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा? -3/2. ऑलराइट, नेक्स्ट. उसके बाद तीसरा स्टेप. ठीक है, अब देखो तुमको मैंने बताया भी था कि अगर तुमको और श्योर होना है कि जो तुमने किया वो राइट है या रॉन्ग है, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करो. -2 into x square is -2x square, minus plus minus 2 into 5/2x, 2 gets cancelled, 5x आ गया. Minus minus plus 2 into 3/2 is how much? 3. It means that our step is absolutely right. Next, उसके बाद क्या स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है Sir, add and subtract. तीसरा स्टेप है apply either x square plus 2xy plus y square or x square minus 2xy plus y square. कौन सा अप्लाई करना है वो भी तुम लोग को मैंने बता दिया. अब बताओ मुझे यहाँ पे, तो अगर मान लो मैं इसको फॉर्मूला को अगर अप्लाई करना चाहूं तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर. ठीक है, फाइन. x स्क्वायर के बाद वाला जो टर्म है, जो x वाला टर्म है, वो प्लस है. मतलब मुझे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो बताओ तो मुझे 5/2x को किस फॉर्म में मुझे लिखना पड़ता है बताओ तो? अभी मैंने बताया था 2 into x into 5/4. 2 into x into y के फॉर्म में, 2 into x into y के फॉर्म में. नाउ द क्वेश्चन इज ये y क्या होगा? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी y. ओके, I have to write 5/2x as 2 into x into y. Now the question is what will be y? Y क्या होगा? So let's find out. Y will be 5/4. 5/4. Y will be how much? 5/4. मतलब अब हम y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं. समझ में आया तो सब कोई को? Yes, please tell me. Yes, उसके sir. बाद नेक्स्ट अब इसमें हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? y का स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब 25/16 ऐड करना और एक बार 25/16 को सब्ट्रैक्ट करना.
एंड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 3/2 ऑलरेडी है वहां पे. नेक्स्ट, नाउ कैन आई राइट दिस डिनोमिनेटर एज, क्या मैं डिनोमिनेटर को अब मैं लिख सकता हूँ? देखो तो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक को, यहां से लेके यहां तक, X क्या मैं plus इसको 5 लिख by सकता 4 हूँ whole x square. plus 5/4 का होल स्क्वायर? I can write this as x plus 5/4 का whole square. All right. Now what is left? It is minus 25/16 minus 3/2. And if you simplify this, you'll get minus 49/16. You'll get minus 49/16. Now minus 49/16 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बताओ तो? 7/4 का होल स्क्वायर. So we have x plus 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/4 का होल स्क्वायर. And then we can apply 1/x square minus a square का formula. So what is the formula of 1/x square minus a square? It is 1/2 a into log of x So 7/4 होगा ना? Huh? So 2 into 7/4 होगा. Oh, I'm sorry. I just. So it is 1/2 a, and a is what? 7/4. By mistake, I've written 5/4. Okay. 1/2 a log of x minus a divided by x plus a. All right, x plus a. और लास्ट में प्लस सी. यहाँ पे एक और चीज, जैसे मैंने इस सम में यहाँ पे x के जगह पे क्या है बताओ तो? x plus 5/4. तो याद है मैंने बताया था But कि derivative is 1. करेक्ट, x का कोएफिशिएंट 1 है. अगर हम 1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें देयर विल बी नो चेंज. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने मतलब करके भी कोई फायदा नहीं है. 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया. सो वी आर minus 1/7. टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. Okay, take LCM and simplify. So at the end we have minus 1/7 log of 4x minus 2 by 4x plus 12. अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो. So finally your answer is minus 1/7 log of 2x minus 1 by 2x plus 6. You can leave your answer till here. Okay, so I think you all have understood कि ये क्या कैसे होगा constant by quadratic type 1. Type 1 constant Yes, by sir. quadratic अच्छे से क्लियर हो गया. और यहाँ पे जो चौथा स्टेप था वो क्या है? अप्लाई करने के बाद अप्लाई द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला. अप्लाई फॉर्मूला. ओके, कम ऑन एवरीवन, कंप्लीट फास्ट एंड देन आई विल गिव यू वेरी सिमिलर टाइप सम. तो ये टाइप 1 ओवर हो जाएगा. टाइप 2 में कुछ भी नहीं है. टाइप 2 बस छोटा सा एक टॉपिक है. जल्दी से इसको कंप्लीट करो. Now the second question, okay. Now I want everyone to try this sum your own, okay. चलो इसको ट्राई करना दो. Just wait up. This plus 3, okay. 2x square plus x plus 3. Try first. I'm giving you 5 minutes, okay. Too fast. So everyone note down. Just I'll take few steps and I'll just try to complete this sum, and then you can verify your answer. So you'll take 2 common. So as a result, you'll get x square plus half x plus 3/2. After this, you have to factorize this middle term. So you can write this as 2 into x into y. Now what will be y? Half x को कैसे लिखेंगे कि 2 into x into y के फॉर्म में आ जाए? So y will be
x6 gives the 1 by answer, y 4. will be 1 by 4. Clearly you can see it's 1 by 4. देखो मैं ये चीज बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, तुम लोग को स्टेप्स दिखाने के लिए कि देखो ये स्टेप अगर करोगे तो कभी भी रॉन्ग होने का चांसेस नहीं है। उसके बाद y का स्क्वायर ऐड, y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये रहा y, तो y का स्क्वायर ऐड करो, y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। इसके बाद we can write this as x plus 1 by 4 का whole square minus 1 by 16 plus 3 by 2 is how much? 23 by 16. Plus 23 by 16. But the problem you're finding in this sum is that 23 is not a perfect square. Not a problem. It's not a big problem. What you can do, you can write 23 as root 23 by 4 का whole square. And then you can apply 1 by x square plus a square का formula. समझ में आया? तो इधर तक सबका अगर आगे मतलब आगे राइट ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 by a tan inverse of x by a, ठीक है, एक एलसीएम या पे एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़े हम लोग टाइप 2 के लिए। प्लीज चेक एवरीवन, सबका आ गया टाइप 1 में, मतलब क्लियर हुआ सबका? सर वो हाफ यस सर 1 by 2 into a होगा ना, 2 भी मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे। कौन सा में? सर हाफ into 1 by 2। नहीं नहीं, फॉर्मूला 1 by a होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में 1 by a, ओ अच्छा हाँ सर। ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कोई कॉपी कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ एलसीएम ले लेना। नेक्स्ट, नाउ टाइप 2। So just 1 second, you can show the last one. जस्ट वेट। Yes, sir. Done. Now what is type 2? Listen here. Type 2 is linear by quadratic. Type 2 is linear expression in the numerator and quadratic expression in the denominator. So this is type 2. Now let me just start with the first sum, okay, of type 2. Suppose we have, let's say 2x plus 3, and in the denominator we have x square plus 3x plus 5. Now you just tell me one thing. ये नहीं बोलो कि ये सॉल्व कैसे करना है, पहले ये बताओ मुझे कि लीनियर का मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में लीनियर है या नहीं है, बताओ पहले। So it is linear. Because the power of variable, I mean the degree of this expression is 1. Is denominator a quadratic? Yes. Yes, sir. It is a quadratic. Now just tell me one thing. इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ये बताओ पहले। तो ये बोल रहे इन दोनों को डिवाइड करके कुछ Mod x plus क्या c. चीज पीयूष बताओ तो। तब डिवाइड करके एक्चुअली दोनों को डिवाइड क्यों करेंगे यहाँ पे? हाँ So we बोलो। will split the terms. Why will split the terms? तो x log plus ये 3x Mod x equals plus to c. b. log x वाला फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इसमें, वही एग्जैक्टली इसमें कुछ भी नहीं है। और x f dash x by fx के फॉर्म में, ये तो चेक कर लो। yes sir. एक बार में गूगली मिल गया तुम लोग को, इतना सब में जाके और एक बार में दिमाग में नहीं है, इसको बोलते हैं गूगली। देखो ये f dash x है, ये fx है, सिंपल है। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो अगर मान लो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log of mod fx। तुम लोग सोच रहे होगा सर ये दिया क्यों, सिली सा क्वेश्चन। अब देखो एक्चुअली ये सम देने के पीछे, ये वाला सम का देने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब देखो नेक्स्ट सम, ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अब मैं जो दे रहा हूं नेक्स्ट सम, वो भी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक ही होगा, लीनियर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक। अब बताओ तो क्या ये सम f dash x by fx के फॉर्म में है? No, sir. नहीं है ना। अब हम उस फॉर्म में बनाएंगे। देखो ध्यान देना एक बार, सबसे पहले कंसंट्रेट करना, सुनना ध्यान से पहले। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा था, तो मैंने डायरेक्ट log of mod fx लगा दिया। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, और एक और चीज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है ये। तो हम क्या करेंगे देखना, यहाँ पे हम पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट है, पहले मैं उसको न्यूमरेटर में कॉपी कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कॉपी। सी द सेम थिंग आई विल कॉपी इन द न्यूमरेटर। देखो मैं एक एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, बट एक बात बताओ, यहाँ पे 2x plus 3 है, यहाँ पे 5x plus 7 है।
2x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा? मैंने क्या पूछा? 2x में क्या मल्टीप्लाई 3x. करने से 5x आएगा? पूछा मैंने क्या मल्टीप्लाई करने से, क्या ऐड करने से नहीं पूछा मैंने। सुनना ध्यान से, 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा? तो ध्यान से देखो, 5/2. 2. 2 हटा दो, 2 हटा दो और 5 ला दो, मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। समझ में मैंने क्या बोला? यहाँ पे 2x + 3 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दिया। अब यहाँ पे 2x को 5x बनाना है, तो सीधा सा बात 2 हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, और 5 लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 5/2 को पूरा से अगर मल्टीप्लाई करें, 5/2 को पूरा से मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो बताओ तो रिजल्ट क्या रहे? So 5x 5x plus plus 15/2। 15/2. बट यहाँ पे कहीं भी तुमको 5x plus 15/2 दिख रहा है? 5x तो मैच कर गया, लेकिन 15/2 दिख रहा है? नहीं, 15/2 की जगह पे क्या है? 7 है। अब मैं फिर से ये वाला टर्म वर्ड रिपीट कर, मतलब सेंटेंस रिपीट करूंगा, आई कैन नॉट चेंज द एक्सप्रेशन बट आई हैव द राइट टू राइट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि +15/2 में मैं पूछ रहा हूं कि +15/2 में क्या ऐड करने से आंसर 7 आ जाएगा? सो लेट दैट नंबर बी y। हमको जानना है कि 15/2 में क्या ऐड करने से 7 आएगा। मतलब अगर हम इसमें क्या ऐड करेंगे तो आ जाएगा, बताओ तो? इसमें क्या ऐड करेंगे तो आंसर 5x + 7 पूरा मैच कर जाएगा। इट इज -½ अब तुम लोग के दिमाग में ये बात जरूर समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्यों सुनना, मैं बता रहा हूं क्या तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। ध्यान देना, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैंने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख दिया, वो तो बहुत सही है, लेकिन मैंने क्यों ऐसा बोला कि 2x + 3 में क्यों ऐसे नहीं पूछा तुम लोग से मैंने कि 2x + 3 में क्या ऐड करने से 5x आएगा? इसीलिए क्योंकि यहां पे मैं जो ऐड करूंगा वो 3x है, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे ये पूछूं तुमसे कि व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू 2x टू गेट 5x, तो आगे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। देखो 2x में क्या मल्टीप्लाई करने से 5x आएगा, तो इंटू 5/2। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2x में क्या ऐड करने से 5x आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? +3x। मतलब -½ की जगह फिर +3x लिखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर लिखने में? इसमें बता रहे इसका रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस तरह लिखने में? देखो ध्यान से, अगर मान लो अभी जिस फॉर्म में है, अगर हम उस फॉर्म में इसको स्प्लिट कर दे डिनोमिनेटर से, तो पहला वाला जो पार्ट है वो कैसा फॉर्म में आ गया बताओ तो? पहला वाला पार्ट किस फॉर्म में आ गया बताओ तो? f'(x/x). Sir f'(x/fx). और सेकेंड वाला पार्ट किस टाइप को मैच कर रहा है बताओ तो? Type 1. टाइप 1। समझ में है बात? तो यहाँ पे जो सेकेंड वाला है वो टाइप 1 को मैच कर गया। इसीलिए हमारा हमेशा काम क्या होगा कि जो पहला वाला टर्म है वो f'(x) हो, f'(x), और सेकेंड वाला टर्म कांस्टेंट हो। समझ में है मेरी बात? ये बात सबको क्लियर हुआ? तो Yes, sir. हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो पहला वाला टर्म हो वो f'(x) हो जाए। समझ में है तो बात? और जो दूसरा वाला टर्म हो वो कांस्टेंट हो जाए। कि अगर हम f'(x) को इससे डिनोमिनेटर से स्प्लिट करेंगे तो f'(x/fx) की फॉर्म में आ जाएगा, और जब कांस्टेंट को डिनोमिनेटर से स्प्लिट करेंगे तो टाइप 1 के फॉर्म को मैच कर जाएगा। टाइप 1 का मतलब कांस्टेंट बाई क्वांटिटी को मैच कर जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा 5/2 log ऑफ डिनोमिनेटर। और दूसरा वाला पार्ट में क्या करना है पता है ना तुम लोगों को? व्हाट यू हैव टू डू? So 2 into x into 3/2. Copy down and complete this sum. Okay, apply the formula and complete this sum. Okay, 1/x² plus a² का फॉर्मूला अप्लाई होगा।
Okay, take LCM and simplify this. Please copy down fast everyone. ये था लास्ट, आई मीन आज का टाइप 2 और ये लास्ट टाइप है, लेकिन मैं एक सम और दे रहा हूं अभी, उसका तुम लोग सिर्फ ये वाला जो लाइन है ना जिसपे f डैश x और कांस्टेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, बस वो दिखा दो और आज का क्लास इतना तक ही खत्म हो। I'm just giving you one sum. Everyone, just show me what will be the second step. You know what is second step? I want इसको न्यूमरेटर को f डैश x और कांस्टेंट के फॉर्म में स्प्लिट करके मुझे दिखा दो, बस इतना ही। So everyone tell me the second line, tell me क्या होगा? The 4x minus 5 into minus 3 by 4 plus 1 by Okay, 4. मतलब 4x को 3x minus 3x बनाने के लिए 4 हटाना है, minus 3 लाना है, पूरा से मल्टीप्लाई किया तो minus 3x प्लस 15/4 है, प्लस 15/4 में क्या ऐड करने से प्लस 4 आएगा? 1 by 4. It is 1/4. तो चेक करो तो सबका मैच किया है? Yes, sir. अगर मैच कर गया तो इसके आगे तो कुछ करना नहीं है, आई मीन करना नहीं है मतलब इजी है, तुम लोग कर पाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 4x minus 5 by 2x square minus 5x plus 6 plus 1/4 ऑलराइट, ये तो हो जाएगा, ये f dash x by fx है और ये टाइप 1 by constant by quantity। ओके, सो आई थिंक एवरीवन यू हैव अंडरस्टूड। ओके, आज का क्लास समझ में आया, फॉलो किया तुम लोग ये तरीके से? Yes, sir.